My dear friends, I greet you in the name of our Lord and Savior, the Lord Jesus. मेरे प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु परमेश्वर यीशु के नाम में शुभकामनाएं। And with a great pleasure, I welcome you to another episode of this special program, Beauty for Ashes. राख के बदले सौंदर्य के एक और सत्र में बड़े आनंद के साथ स्वागत करते हैं। This is a special program that the Lord has anointed to accomplish great things in these last days. इन अंतिम दिनों में बड़े कार्यों को हासिल करने के लिए परमेश्वर के द्वारा अभिषेक किया गया खास कार्यक्रम है। And we've been looking at Isaiah 61 from verse 1 to verse 3. हम एशिया उसके 61वें अध्याय के 1 से लेकर 3 पद देखते आ रहे हैं। And because I know you've all memorized it, let's read it together. हम जानते हैं आप सबने इसे याद कर लिया है, इसलिए हम मिलकर इसे पढ़ेंगे। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? 1, 2, go. 1, 2 चलें। The Spirit of the Lord is upon me. प्रभु यहोवा की आत्मा मुझ पर है। The Lord has anointed me to preach good tidings to the meek. यहोवा ने दीनों को सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक किया। He has sent me to heal the brokenhearted, खेदित मनों को चंगाई देने के लिए भेजा, to proclaim liberty to the captives, बंदियों की आजादी के लिए, and the opening of the prison to those who are bound, जो बंधन में उन्हें खोल देने के लिए, to proclaim the acceptable year of the Lord, यहोवा का प्रश्न वर्ष का प्रचार करूं, and the day of vengeance of our God. और यहोवा की पलटा देने के दिन, Appoint unto those that mourn in Zion, सियोन में विलाप करने वालों के ऊपर हाथ रखूं, to give them beauty for ashes, राख के बदले सुंदरता दें, the oil of joy for mourning, उनके विलाप के लिए आनंद का तेल उंडेलूं, and the garment of praise for the spirit of heaviness, उदासी लोगों के लिए जो है आनंद की ओढ़नी ओढ़ूं, so that they can be called the trees of righteousness, the planting of the Lord, and the Lord will be glorified. कि वो परमेश्वर की लगाए हुए वो धार्मिकता के पेड़ कहलाने पाए। And so for several months we've looked at the Spirit of the Lord being poured out in the last days. और जो अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा उंडेलने के विषय में काफी हफ्ते हम बात करते आ रहे हैं। Because the first part says the Spirit of the Lord is upon me. और क्योंकि पहला भाग कहता है कि यहोवा की आत्मा मुझ पर है। And we were able to establish that for every work of the Lord He has to do in these last days, it has to be done by His Spirit. और क्योंकि हम देखते हैं जो कुछ कार्य इस पृथ्वी में प्रभु का होना है वो आत्मा के द्वारा कार्य करता है। Meaning it cannot be done by our power, it cannot be done by our might, but it can only be done by the Spirit of the Lord. इसका मतलब ये है कि हमारे बुद्धि से ना हमारी सामर्थ्य कार्य होगा, सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा ही होगा। So all the good works listed in Isaiah 61, 1 to 3 can only be done by the Spirit of the Lord. इसीलिए हर एक भले काम जो यशायाह 61 के पहले आयत से लेकर तीसरी आयत तक कहा गया है वो सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा ही कर सकते हैं। And the first verse says, the Spirit of the Lord has anointed me to preach good tidings to the meek. जैसे पहला वचन कहता है कि दीनों की सुसमाचार सुनाने के लिए यहोवा ने अभिषेक किया है। And we've looked at the meaning of that. उसके मतलब को हमने देखा। We talked about healing the brokenhearted. खेदित मन की चंगाई के विषय में बात किए। And we looked extensively at what it means to be of a broken heart. और हमने देखा कि जो टूटे मन का मतलब क्या होता है। We've also looked at proclaiming liberty to the captives. हमने ये भी देखा बंदियों को जो है आजादी का प्रचार करने का। And the opening of the prison to those who are bound. और जो बंधन में उनके बंधन खोलने का। And last week we began to look at proclaiming the acceptable year of the Lord and the day of vengeance of our God. पिछले हफ्ते परमेश्वर का प्रश्न वर्ष का और जो है उसके पलटा लेने के दिन के विषय में बात की। And so there is a time period in our lives that is known as the acceptable year of the Lord. एक ऐसा समय है जो जिसे परमेश्वर की ग्रहण योग्य साल कहते हैं। This is a time period where the door of salvation is open for us. और यही वो समय शैली है जहाँ पर उद्धार का द्वार हमारे खुल जाता है। This is a time period where the Lord says, whosoever shall call upon the name of the Lord will be saved. और यही वो समय है जहाँ पर प्रभु कहता है जो कोई इसके नाम पे पुकारेंगे बचाए जाएंगे। And last week we examined the word whosoever. पिछले हफ्ते हमने देखा वो शब्द जो कोई। And whosoever means it doesn't matter who you are, it doesn't matter your past, it doesn't matter what you've done. When you call upon the name of the Lord, He has promised that He will save you. जो कोई शब्द के मतलब जो है उसमें मायने नहीं रखता कि आप कौन हैं भूतकाल में या क्या काम किया है, किस प्रकार के पाप किए हैं, किस प्रकार के व्यक्ति उसमें मायने नहीं रखता है। And last week we also examined a scripture that says the name of the Lord is a strong tower
that you can run into for safety. और पिछले हफ्ते ये भी देखा परमेश्वर के नाम ऊंचा मीनार है जिसमें आप सुरक्षा के लिए दौड़ सकते हैं। Now, why do you need a strong tower to run into, to hide, and to be safe? आपके लिए ऊंची मीनार की जरूरत क्यों है जिससे कि आप सुरक्षा के लिए उसमें दौड़कर सुरक्षा पाएं? Well, there are a few reasons. The first one is you have an enemy that wants to destroy you. उसमें कुछ वजह है। पहला, एक शत्रु है आपका जो आपको विनाश करना चाहता है। In the book of 1 Peter, we are taught there that we have an adversary who goes around like a roaring lion seeking whom to destroy. पहला पत्रस के पुस्तक में हमारे से कहा गया है हमारे लिए एक ऐसे शत्रु है वो ऐसे घूमता फिरता रहता है कि किसको निगल लूं। And so if you have an enemy that wants to devour you, that wants to destroy you, that wants to kill you, you need safety and security which can only come in the name of the Lord. इसलिए जबकि अगर आपके लिए एक शत्रु हो जो आपको विनाश करने, ना आपको निगलने, आपको हत्या करना चाहता है, तो आपके लिए एक मीनार की जरूरत है जहां पर आप सुरक्षा पा सकें, वो प्रभु का नाम ही है। And another reason why you need the security of the strong tower of the name of the Lord is the next part of that verse in Isaiah 61 that talks about the day of vengeance of our God. और एक और वजह यह है कि परमेश्वर के नाम जो ऊंचा मीनार हमारी सुरक्षा के लिए इसलिए जरूरत है क्योंकि इस 61वें अध्याय का अगला भाग कहता है कि पलटा देने का दिन परमेश्वर का आ चुका है। And this is one of the purposes for which the Lord has ordained this program, to proclaim also the day of vengeance of the Lord. और इसीलिए परमेश्वर ने इस कार्यक्रम को नियुक्त किया और अभिषेक किया है ताकि हम प्रचार कर सकें यीशु का बदला देने का दिन। And so there is a time period that the Lord has reserved for himself to openly intervene in the affairs of men. और परमेश्वर ने एक ऐसा समय रखा है जहां खुले तरीके से परमेश्वर मनुष्य के जीवन में दाखिल होगा। And in this day he is going to judge all those who rejected his free offer of salvation. और इस दिन जो उन सब का न्याय करेगा जो उनके उद्धार जो मुफ्त का था इनकार कर दिए हैं। And several prophets, especially the minor prophets in scripture, prophesied about this day. बहुत से भविष्यवक्ताओं ने बाइबल में खास रीति से छोटे भविष्यवक्ताओं ने इस विषय में भविष्यवाणी करी है। Malachi describes this time period as a day that burns as an oven. और मलाकी जो इस विषय का बताता है कि वो ऐसा दिन है आग की भट्टी के समान। Malachi describes this day as a day that burns as a furnace. और मलाकी इस दिन का विवरण देता है कि कैसे जो आग जैसा जो भस्म करने वाला है। And he says all those who are wicked and who rejected the offer of salvation, they will be consumed by that day. वो कहता है जो कोई इस जो है उस भेंट को जो है इनकार कर दिया है वो सब आग में जला दिए जाएंगे। So this is the second reason why we need the name of the Lord as our defense. और इसी वजह से ये दूसरी वजह है कि क्यों हम परमेश्वर के नाम हमारे लिए सुरक्षा के लिए जरूरत है। And so when that scripture says the name of the Lord is a strong tower, you can run into it and you are safe. और वो वचन बताता है कि परमेश्वर के नाम ऊंचा मीनार जिसमें आप दौड़कर सुरक्षा पा सकते हैं। If you combine that scripture with the other scripture that says whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. जब आप इस वचन को दूसरे वचन के साथ जब जोड़ देंगे जो कहता है कि जो कोई इस पे विश्वास करे वो बचाए जाएंगे। If you combine these two scriptures together, what it means is when you call upon the name of the Lord, you are entering into a safe zone. और इन दोनों वचनों को मिलाकर अगर आप देखेंगे जो कोई पुकारने के मतलब आप पुकारते ही वो सुरक्षा की श्रेणी में पहुंच जाते हैं। And so when the day of vengeance of the Lord comes and is burning up all those who are not safe, you will be secure in the name of the Lord. इसलिए परमेश्वर का पलटा का दिन जब आएगा जब आप उसके नाम में पुकारेंगे आप उस सुरक्षा में प्रवेश करेंगे। So try to imagine the ark of Noah. आप कल्पना करके देखिए नूह की उस जहाज के समान। That is how secure the name of the Lord is. उतना ही परमेश्वर के नाम सुरक्षा का स्थान है। And so the 8 souls who were saved in the ark of Noah represents those who call upon the name of the Lord. जो 8 आत्मा जो उस जहाज में बचाई गई थी वो उनको दर्शाता है जो कोई इस पर विश्वास किया नाम को पुकारा। In the New Testament, Noah is called a preacher of righteousness. नए नियम में नूह को जो धार्मिकता का प्रचारक कहा गया है। And so before the rain and the floods came, Noah was preaching the acceptable year of the Lord. और जबकि परमेश्वर की दंड का वो बाढ़ के दिन आने से पहले नूह ने प्रचार किया जो उसका प्रश्न का वर्ष था। Noah was preaching a message saying, now is the time of salvation because a day of vengeance is coming where it will rain
and all the ungodly will perish in the flood. और नूह प्रचार कर रहा था कि यही जो है उद्धार का दिन है परमेश्वर का, क्योंकि पलटा देने का दिन आ रहा है जहां बारिश बरसाकर उन सारे बाढ़ में जो है उन सबको विनाश कर देगा। But just like our day today, the people, they despised the words of Noah. आज के दिन के समान ही उस दिन में भी नूह की बातों को उन लोगों ने टाल दिया। And even the scriptures prophesy that our day would be exactly like the days of Noah. और वहाँ पे वचन ऐसे भविष्यवाणी के रूप में कहता है नूह के दिन के समान ही आज के दिन भी होगा। The scripture says, until the day that Noah entered the ark, everyone continued in their wicked ways. और बाइबल बताता है नूह जहाज में प्रवेश करते तक लोग अपने दुष्टता में ही जारी रहने लगे। So they were doing whatever they liked. They were marrying whomsoever they wanted to marry. They were just living outside of God's will. और वे जो है अपने मनमानी कार्य कर रहे थे, जिससे भी चाहे वो विवाह कर रहे थे, वो प्रभु की इच्छा के बाहर थे। And the scripture said they continued to do all these things until the day that Noah entered into the ark. बाइबल बताता है कि नूह उस जहाज में प्रवेश करते तक वे ऐसा ही करते रहे। Now, what is that day? The day that Noah entered into the ark. वो कौन सा दिन था नूह जो उस जहाज के अंदर प्रवेश किया? The day Noah entered into the ark is a particular marker or a day that the Lord chose as his deadline. और वो जिस दिन नूह जहाज के अंदर प्रवेश किया, यो प्रभु के द्वारा नियुक्त किया गया, वो अंतिम दिन था। The day Noah entered into the ark represents the day where his offer of salvation expired. और वो जिस दिन जो नूह ने जहाज में प्रवेश किया, वो ऐसा तारीख है जो प्रभु का दिया हुआ उद्धार का खत्म होने का दिन है। The day Noah entered the ark represents the particular date that the Lord had chosen as a deadline for repentance. और जिस दिन नूह ने जहाज में प्रवेश किया, वो ऐसा दिन था कि परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया मन फिराव का अंतिम दिन था। So all the days leading up to the day he entered the ark was the year of the acceptance of the Lord. जिस दिन नूह ने जहाज में प्रवेश किया, उस दिन से उस दिन तक सारा वो दिन था, वो परमेश्वर का प्रश्न और ग्रहणियों का दिन था। And you know, when Noah entered the ark, the Bible specifically says that the Lord shut them in. और जैसे नूह जहाज में प्रवेश किया, परमेश्वर ने इस द्वार को बंद कर दिया। Now there is a spiritual significance to that statement. और इस वाक्य का आत्मिक एक महत्वपूर्ण बात है। And part of what it means is that the Lord closed the door of salvation. उसके मतलब ये है कि परमेश्वर ने उद्धार का द्वार बंद कर दिया है। And so when the flood started, many people began to bang on the door of the ark. और क्योंकि जब वो बाढ़ शुरुआत हुआ, बहुत सारे लोगों ने दरवाजे पे दस्तखत दिया। Noah heard their voices. Noah was moved with compassion. He wanted to open the door for them, but the Lord had shut them in. नूह ने उनकी आवाज सुना, बहुत दयालु हुआ, उनके लिए दरवाजा खोलना चाहता था, मगर दरवाजा प्रभु ने बंद कर दिया है। And so only the 8 people who called upon the name of the Lord were saved. इसीलिए वही सिर्फ 8 लोग जिन्होंने उसके नाम को पुकारे, वो बचाए गए। But the sad truth is, whosoever would have called upon the name of the Lord would have also been saved. और उसके दुख की बात है, अगर कोई और भी पुकारे होते, वो भी बचाए जाते। It doesn't matter what life they had lived, if they had chosen to call upon the name of the Lord and surrender to the Lord and change their ways, they would have been saved. उसमें मायने नहीं रखता अगर वो किस प्रकार की जिंदगी क्यों ना जिए हों, अगर वो जो है यीशु को पुकारते, अपने जीवन में जो है यीशु के अनुसार कार्य करते, सब चीज छोड़ देते, वो भी बचाए जाते। And this is the same thing that happened with Sodom and Gomorrah. यही बात सोदोम और गुमरा के साथ हुआ। The Lord had chosen a date परमेश्वर ने एक दिन नियुक्त किया हुआ था where the acceptable year of the Lord would come to an end and the day of vengeance would come. जहां परमेश्वर का ग्रहण योग्य साल खत्म होता है और पलटा का दिन शुरुआत होता है। And that day literally burned as an oven. और उस दिन वास्तविकता में एक भट्टी के समान जलने लगा। Lot was also a preacher of righteousness. लूत भी जो है धार्मिकता का प्रचारक था। He also preached to them to change their ways. उनके लिए भी उसने प्रचार किया, उनके मार्गों को सुधारने के लिए, But they did not listen. मगर उन्होंने उनकी सुना नहीं था। And the day those angels entered into the city of Sodom and Gomorrah like men, जैसे उस दिन स्वर्गदूतों ने जो पुरुषों के समान सोदोम और गमोरा में प्रवेश किया, that was the expiry date of the offer of salvation. उद्धार दिया हुआ उसके
अंत का दिन था। And so the Lord is proclaiming that his door is still open now. इसलिए प्रभु घोषित कर रहा है कि उसका द्वार अभी भी खुला है। Now is your time of salvation, not tomorrow. अब आपका उद्धार का समय है, कल नहीं। Why not choose the Lord now? अब क्यों ना प्रभु को चुने? Stop telling yourself, I will wait until I get old. अपने आप को जो कहना रोक दीजिए कि मैं जब बुजुर्ग हो जाऊंगा तब करूंगा। Stop telling yourself, I want to just enjoy my youthful years doing what I like, and when I am old, I will repent. ऐसा कहना बंद करिए कि अब मैं जवान हूँ, मैं अपनी आनंद मना लेता हूँ, जब मैं बुजुर्ग हो जाऊंगा कर लूंगा करके। You don't know about tomorrow. Now is the time of salvation. कल के बारे में आप नहीं जानते कि आज ही आपका उद्धार का दिन है। There were many young people who listened to Noah's salvation message and they told themselves, I will wait until I'm old. नूह के प्रचार सुनने वाले बहुत सारे जवानों ने ऐसे कहा, अब मैं तो जवान हूँ, जब मैं बुजुर्ग हो जाऊंगा करूंगा करके। They wanted to enjoy their youthful days doing whatever they liked. अपनी जवानी को जो है जो वो चाह रहे थे उसे करके आनंद मनाना चाहते थे। The Lord has a good plan for you. प्रभु का आपके लिए एक अच्छा योजना है। I tell you one thing, the Lord is sweeter than any lifestyle you can ever have. मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु ही एक बहुत ही मधुर है, किसी और जिंदगी से भी बढ़कर। Why not choose the Lord today? क्यों ना आज प्रभु को चुने? Now is the day of salvation. अब ही उद्धार का समय है। If you want to escape the day of vengeance of the Lord, choose the acceptable year of the Lord. अगर यीशु का पलटा देने वाले दिन को अगर आप जो है बचना चाहते हैं, यीशु का जो है प्रश्न साल को स्वीकार करें। And once again the Lord is calling unto you. एक और बार प्रभु आपको बुला रहा है। And he says unto you, choose life. वो कहता है कि जीवन को चुन लो। Choose the Lord now. प्रभु को चुन लो अभी। Tomorrow may be too late. कल बहुत देर हो सकता है। So choose him today. इसलिए आज चुन लो। Because he has a really good plan for your life. क्योंकि आपकी जिंदगी के प्रति एक अच्छी योजना रखा है। Rise to your feet now and let us pray. खड़े हो जाएं, हम प्रार्थना करें। Lord, we thank you for the door of salvation you have opened to us. धन्यवाद पिता कि वो उद्धार का द्वार हमारे लिए खोलने के लिए। And Lord, we are sorry for any way that we've hardened our hearts against you. क्षमा चाहते हैं प्रभु, क्या आपके प्रति हमने अपने हृदय को कठोर कर लिया होता। And today, Lord, we lift up our hands and we call upon your holy name. प्रभु आज हम अपने हाथ उठाकर आपके पवित्र नाम को पुकारते हैं। Lord, we ask that you save us. मांगते कि आप हमें बचा लें। We run into the strong tower of your name for our safety. आपके नाम जो ऊंचा मीनार है, हमारे सुरक्षा के लिए उसकी ओर दौड़ते हैं। And Lord, we ask that you keep us in you in the day of trouble. मांगते हैं कि संकट के समय हमें आपके अंदर रख लें। Thank you, Lord, for the answer. धन्यवाद पिता आपके उत्तर के लिए। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। I look forward to seeing you again same time next week. अगले हफ्ते इसी समय मुलाकात करने के इंतजार में हूँ। And until then, God bless you. तब तक प्रभु आपको आशीष दे। इश्क जगत हो चार दहाड़े, क्यों तू अपना आप गवावे, और किसे नल बात न रलेनी, जे तू ध्यान यसु वल ना लावे। और अब जाने हाल दिलां दे, ना तू अपनी अपनी आँखी जा, ओ इत्थे बड़ियां ने ढूंढ रचाने, ना तू नाप सकाता
रब जाने हाल दिलां दे ना तू अपनी अपनी आखी जा ओ इत्थे बड़ियां ने ढोंग रचाने ना तू नाम सबाना जापी जा जग दियां रस्मां नूं अपनी हयात दी लोड़ बनावी ना दौलत नाल वी अपने ईमान दा मोल तू लावी ना पैर पैर उत्ते तैनू खड़कावेगा हथरा शैतान तैनू बड़ा आजमावेगा पैर पैर उत्ते तैनू खड़कावेगा हथरा शैतान तैनू बड़ा आजमावेगा ओ रब जाने हाल दिलां दे ना तू अपनी अपनी आखी जा ओ इत्थे बड़ियां ने ढोंग रचाने ना तू नाम सबाना जापी जा ओ रब जाने हाल दिलां दे ना तू अपनी अपनी आखी जा ओ इत्थे बड़ियां ने ढोंग रचाने ना तू नाम सबाना जापी जा एन्जल टिभीका दार्जिलिङ एवं सिक्किमका प्रिय दर्शक वृन्द, अब तपाईँले आफ्नो भेटी कालिम्पोङ जिजस मिनिस्ट्रिज कार्यालयमा पठाउनको निम्ति हाम्रा दार्जिलिङ अनि सिक्किमका प्रतिनिधिहरूलाई बुझाउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो दार्जिलिङको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ पास्टर सरोज रोङ्गोङ, ठेगाना एजेसी बोस रोड, सर्किट हाउस, दार्जिलिङ 734101 पश्चिम बङ्गाल। सम्पर्क नम्बर 9851025098 9564371338। सिक्किमको निम्ति श्रीमती छोडेन लेप्चा मार्फत सुरेश छेत्री, छोजाङ भुटिया बिल्डिङ आरिथाङ स्कुल छेउ, गान्तोक सिक्किम 737101। सम्पर्क नम्बर 7797888563। तपाईँले आफ्नो चेक औ डिमान्ड ड्राफ्ट जिजस मिनिस्ट्रिज नाम गरेर पठाउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो कार्यालयको ठेगाना यस प्रकार छ: जिजस मिनिस्ट्रिज, प्रेमताम रोड, मिस्टर कटेज, पोस्ट अफिस कालिम्पोङ 734301। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 03552255052। हाम्रो इमेल आइडी छ jmkpg@jesusministries.org। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedbacks to Angel TV, Villivakkam, Chennai 600049, Tamil Nadu, India. Our email ID is programs.hindi@angeltv.org. अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं, तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए: एंजल टीवी, विलिवाकम, चेन्नई 600049, तमिलनाडु, भारत। हमारा ईमेल आईडी है programs.hindi@angeltv.org।